Hello children, today we will read Chapter 1 The Tiny Teacher of book An Alien Hand. I hope you like the video. If you like the video, then drop the like button. Let's start. Chapter 1 The Tiny Teacher. Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard working. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. So very small, the ant is unbelievably intelligent and hard working. आंट जो होती है सबसे ज़्यादा काम करने वाली होती है, सबसे छोटी होती है और सबसे इंटेलिजेंट होती है. जो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट आंट है, माने जो बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं, वो आंट है रेड और ब्लैक. माने लाल और काली चींटी आप अपने घर में देखते ही होंगे. एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स. आंट्स जो होती हैं वो अपने होम में रहती हैं और उनके होम को कहते हैं हम लोग एंट हिल्स. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. इज इट द फ्लाई? नो इट इजंट. इज इट द मॉस्किटो? नो नॉट द मॉस्किटो. देन इट मस्ट बी द worm. No, none of these. It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect. The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. Name the smallest insect you have seen. एक सबसे छोटा इंसेक्ट बताइए जो आपने देखा हो, क्या, और जो सबसे समझदार हो. क्या वो मक्खी है? नहीं, वो मक्खी नहीं है. क्या वो मॉस्किटो है? नहीं, वो मॉस्किटो भी नहीं है. क्या वो वॉर्म है? नहीं, वॉर्म भी नहीं है. नो, नन ऑफ दिस. इट इज द आंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hardworking and intelligent creature. और हमें इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स पता है इस छोटे से क्रिएचर के बारे में. An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. Watch a row of ants moving up or down the wall. Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. एक आंट के पास एक फीलर और एंटेना होता है जो आप उसके सर पे देखते होंगे. ये देखिए, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा. तो जो आंट होती है उसके पास फीलर्स होते हैं और वो उसी से अपने आपस में बात करती है और अपने आपस में मैसेज भेजती है. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आप कई सारी चींटियों को देख रहे होंगे, वो चलती हैं, आपस में बात करती हैं. अपोजिट डायरेक्शन से कोई चींटी आ रही है तो उसको क्या कहना चाह रही है वो फील करके करती है. There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones. We have seen them since we were children but haven't paid enough attention to them. Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills. Each has hundreds of little rooms and passages. In some of these rooms, the queen ant lay eggs. Others are nurseries for the young ones called grubs. Workers have their reserved quarters. They spend most of the time searching for food. Some rooms serve as storehouses for this food. Soldiers have separate barracks. No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. So you see, the ant's life is
very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. बहुत तरीके की चींटियाँ होती हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चींटियाँ होती हैं लाल और काली। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हमने उन चींटियों को बचपन से देखा है, लेकिन हमने उन्हें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया है। वो कहाँ रहती हैं? वो अपने घरों में, जिन्हें हम नेस्ट कहते हैं, या आंट हिल्स में। ईच हैज़ हंड्रेड्स और लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर किसी के पास हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स, बहुत छोटे छोटे कमरे होते हैं, और पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स अ क्वीन आंट ले एग्स। कुछ कमरों में क्वीन आंट जो होती है वो अंडे देती है, जो नर्सरीज के लिए यंग वंस को कहते हैं। तो उनके यंग वंस को कहते हैं, जो छोटी चींटियाँ होती है एकदम न्यू बॉर्न, उन्हें कहते हैं हम लोग ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वर्कर्स के जो होते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, चींटियों जैसे हम लोगों की दिनचर्या में कोई इंसान काम करता है, कोई वो करता है, वैसे इनके में भी होता है। इनके में भी रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं वर्कर्स के, अलग अलग कमरे होते हैं हर किसी के। वो अपने जो वर्कर्स होते हैं वो खाना ढूंढने में बहुत टाइम लगाते हैं, ढूंढते हैं खाना। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। कुछ कमरों में खाना रखा रहता है स्टोर हाउसेज में, जैसे कि हमारे यहाँ कबाड़ रखा रहता है, तो उनके यहाँ खाने रखा रहता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। सबके पास अपना अपना गलत होता है, अपना घर होता है, तो हर वर्कर के पास सोल्जर्स हाउस में रहने जाता है। मतलब सोल्जर्स हाउस में वो नहीं जाता है, वर्कर सबका अपना सेपरेट होता है, तो कोई किसी में इधर उधर नहीं जाता है। न सोल्जर कभी खाना ढूंढने जाएगा, न वर्कर कभी सोल्जर बन के कुछ काम करेगा। सबका अपना अपना ड्यूटी, अपना अपना काम है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ना कभी वो ग्रब को हार्म करते हैं, ना कभी वो कुछ करते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आपने देखा कि एक चींटी की लाइफ कितनी पीसफुल होती है, शांतिपूर्वक होती है। ईच डज इट शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। वो आपस में अपना काम बहुत इंटेलिजेंटली बांट लेते हैं और कभी दूसरे मेंबर्स के साथ फाइट नहीं करते हैं। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स which she casts off before she begins to lay eggs. Each eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons, and cocoons break into to bring forth complete ants. The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open. तो जो क्वीन आंट होती है उसके पर निकल आते हैं और फिर वो अंडे देना शुरू कर देती है। जब अंडे हैच होते हैं, जब अंडे में से निकलते हैं, तो वो ग्रब्स होते हैं। जब ग्रब्स कोकून्स में बदल जाते हैं, कोकून्स जब ब्रेक होते हैं, तो वो एक कंप्लीट आंट बन जाता है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। माने जो ये जैसे इन लोगों की दिनचर्या होती है, वैसे हम लोगों की भी बहुत दिनचर्या होती है। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years. It has a pair of wings but bites them off after its wedding flight. This flight takes place on a hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. जो क्वीन होती हैं वो इंटायर पॉपुलेशन ऑफ कॉलोनी की वो मदर होती हैं और वो 15 साल तक रहती हैं, और जब उनके पेयर ऑफ विंग्स वो हो जाते हैं तो वो उन्हें ख़त्म कर देती, बाइट करती है और फिर वेडिंग फ्लाइट करती हैं। द फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। जो इनकी फ्लाइट होती है वो प्लेस करती है समर डे पे। द क्वीन लीव्स द नेस्ट and goes out to meet a male ant or drone.
फिर वो मेल आंट से फिर से मिलने चली जाती हैं और ड्रोन करती हैं हाई, या ड्रोन के पास चली जाती हैं हाई अप इन द एयर ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ। ऊपर जाने के बाद जब वो अर्थ पे वापस आती हैं तो वो विंग से रिड ऑफ हो जाती हैं, नथिंग बट ले एग्स एंड देन डज नथिंग। फिर वो कुछ नहीं करती हैं, फिर अंडे देती हैं। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। जब एग्स हैच होते हैं तो ग्रब्स आ जाते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर्स जो होते हैं वो उन्हें गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। वर्कर्स जो होते हैं वो उन्हें फीड करते हैं और उन्हें साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और उन्हें डेली एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और सनशाइन के लिए बाहर ले जाते हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 या 3 हफ्ते बाद ग्रब्स जो है वो कोकून्स में बदल जाते हैं और रह लेते हैं बिना खाने के और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। वो 3 हफ्तों तक फिर बिना एक्टिविटी और बिना खाए पिए रह लेते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक। फिर कोकून्स जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं और फिर एक परफेक्ट आंट तैयार होती है। Now it's time for teaching and training. New ants learn their duties from old ants. जो नई चींटियाँ बॉर्न होके एकदम बाहर निकलती हैं फ्रेश, उन्हें ड्यूटीज समझदारी मिलती है। मतलब उनको जो पहले वर्कर्स होते हैं वो समझाते हैं कि क्या काम कैसे करते हैं और फिर ऐसे ही बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क उनका बनता चला जाता है। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. जो ant home होता है वो केवल ज़रूरी नहीं कि ants के लिए ही हो, वो कुछ और creatures के लिए होता है, जैसे कि beetles, lesser breeds of ants and the green fly. Why do ants want these alien creatures to live in their nests? वो चींटियाँ ऐसा क्यों करती हैं कि वो उन एलियन क्रिएचर्स को जो उनके झुंड के नहीं हैं उन्हें अपने उसमें कैसे रहने देती हैं? फॉर सेवरल रीजन्स, कुछ रीजन्स के कारण। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द आंट्स। उनमें से कुछ जो होते हैं वो ऐसी इतनी अच्छी स्मेल देते हैं जो आंट्स को पसंद आती है। सेंसेस, अदर गिव स्वीट जूसेस, या उनमें से कोई स्वीट जूस देता है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। जैसे हम लोगों के लिए हम लोग कुत्ते या बिल्लियों को खिलाते हैं, वैसे ही वो लोग भी उनको खिलाते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ। जो ग्रीन फ्लाई होती है वो आंट की एक तरीके से काउ होती है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क। आंट जो है उन्हें ट्रेन करती है हनी ड्यू देने के लिए, जैसे कि मिल्क हमें मिलता है काउ से। विद द टच ऑफ देयर एंटीना दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। ऐसे ही वो मिल्क करते हैं काउ को। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness and care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live. ह्यूमंस को भी इन लेसन से ये सीखना चाहिए कि जैसे ये चींटी रहती हैं पीसफुली, वैसे हम लोगों को भी रहना चाहिए और डिसिप्लिन और क्लीननेस मेंटेन करके रखना चाहिए, जिससे यंग वंस को हम लोग सिखा सकें और एक फॉर्मेलिटी और लॉयल्टी से रह सकें अपने जहाँ पे हम लोग रहते हैं। उम्मीद करता हूँ अब मैंने जो जैसे समझाया आपको चैप्टर पसंद आया होगा। तो चैप्टर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू friends, children.